Hello friends, Jai Swaminarayan. So now in this session we will see the voltage regulation of synchronous generator or alternator. Okay, so before going to start with this, what we have done up till now, so we have gone through the in last lecture we have seen some examples based on that impedance, synchronous impedance एंड वेक्टर डायग्राम. ओके, सो हमने ये पहले तो हमने वेक्टर इक्विवेलेंट सर्किट्स को डिफाइंड किया ऑफ अल्टरनेटर, equivalent circuit of alternator, and then we have defined the phasor diagram we have defined for the different load, means when power factor is lagging and when power factor is unity, when power factor is leading. Okay, so these are the power factor, means they are accordingly the load, means when load is resistive, capacitive and inductive. So for a different load or for a different power factor we have a different phasor diagram. So from phasor diagram we came to know that the whatever terminal voltage Vt is always be we can say less than the generated voltage Eg or Ef. Okay, अलग अलग बुक में अलग अलग दिखा होगा. इन सम बुक दैट इज़ अ Vt आउटपुट वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज के फॉर्म में दिखाया होगा. इन सम बुक्स हियर आई शोन द Vt इन द फॉर्म एंड जनरेटेड वोल्टेज दैट इज Eg भी हो सकता है, Ef भी हो सकता है. ओके, तो दिस इक्वेशन इज बेसिकली फॉर when power factor is lagging. Okay, and same way when the power factor is unity, so this is the voltage equation, generated voltage in the form of terminal voltage, and when power factor is leading, means capacitive load is that, this is the equation for that. Okay, so this equivalent circuit and phasor diagram that we have completed, and on the basis of that we have solved some examples. Okay, so now our today's session is on voltage regulation. So as name say voltage regulation, so voltage regulation is nothing but a difference of जनरेटेड वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज. तो यहाँ आप देख सकते हो वोल्टेज रेगुलेशन इज नथिंग बट अ जनरेटेड वोल्टेज एंड टर्मिनल वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल वोल्टेज. ओके, तो अब हमें पता है कि जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है तो टर्मिनल पे उतना वोल्टेज नहीं मिल रहा है. क्यों नहीं मिल रहा है? देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर दैट अफेक्ट दैट, कि भाई आर्मेचर रिएक्शन से लोड पे भी डिपेंड है कि भाई लोड वेरी होगा, टर्मिनल वोल्टेज अकॉर्डिंगली वेरी होगा. ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन दैट generated voltage and terminal voltage is known as a voltage regulation, and divided by V, then we got a percentage voltage regulation. So EA is here our generated voltage per phase, and V is the magnitude of rated terminal voltage per phase. Okay, so the voltage regulation of synchronous generator is rise in a voltage at the terminal when the load is reduced from full load to rated value to zero. स्पीड एंड फील्ड करंट रिमेन कांस्टेंट. तो जैसे ही लोड चेंज होगा टर्मिनल वोल्टेज पे इफेक्ट आएगा. इट डिपेंड अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड. ओके, फॉर यूनिटी एंड लेगिंग पावर फैक्टर देयर इज ऑलवेज द वोल्टेज ड्रॉप विथ इंक्रीजिंग ऑफ द लोड, बट फॉर द सर्टेन लीडिंग पावर फैक्टर द फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन इज जीरो, बिकॉज ये पोर्शन नेगेटिव फॉर्म में जनरेट होगा. ओके, so this is the equation of voltage regulation, or we can say the MP1 voltage percentage voltage regulation. Okay, so अब हमें इसे किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? सो देर आर नंबर्स ऑफ मेथड टू डिटरमाइन दी वोल्टेज रेगुलेशंस. काफ़ी बार एग्जाम में आ गया है क्वेश्चन कि भाई कौन कौन सी मेथड है, एंड एक्सप्लेन एनी वन मेथड. ओके, सो डायरेक्ट मेथड्स वी हैव एंड वी हैव इनडायरेक्ट मेथड. सो इनडायरेक्ट मेथड में जो मेथड्स है दे आर द स्टैंडर्ड मेथड्स, and one is determination of voltage regulation by synchronous impedance, or another name is EMF method. Okay, synchronous impedance से solve करते हैं. then another is a ampere turn method or MMF method, and last is a zero power factor method or potential method. or okay, so these three are the indirect method, and this is a direct method. So let's go through this method. Okay, so in this session we will see the synchronous impedance method and direct method. Okay, so first of all go through the direct load test, direct method to find out the voltage regulation. तो हमारे पास इक्वेशन वोल्टेज रेगुलेशन का है. ओके, तो हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्पेशली ई ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. टर्मिनल वोल्टेज हमें
डायरेक्टली मिल सकता है, ओके, at a terminal side. So in direct load test, the alternator run on the synchronous speed and in terminal voltage is exact to its rated value. Okay, voltage apply कर रहे हैं. The load is vary until the ammeter and wattmeter indicate the rated value. कब तक हम वेरी करेंगे लोड को? जब तक एमीटर एंड वाटमीटर शो द रेटेड वैल्यू हो फॉर अ गिवन पावर फैक्टर. द लोड इज रिमूव एंड द स्पीड एंड फील्ड एक्साइटेशन आर कीप कांस्टेंट. अब लोड हम रिमूव कर देते हैं और फील्ड एक्साइटेशन एंड स्पीड कांस्टेंट रखते हैं. द वैल्यू ऑफ ओपन सर्किट, अब लोड निकाल दिया है, दैट विल जो ओपन सर्किट एंड नो लोड वोल्टेज इज रिकॉर्डेड. अब नो लोड वोल्टेज और ओपन सर्किट सॉरी मीन्स वोल्टेज इज रिकॉर्डेड एंड दैट इज अ EA. Okay, so it is found from the percentage voltage regulation that is given by this equation. Okay, this methodology used for the low rated alternator, small alternator के लिए हम use करते हैं methodology. Okay, so then we have a indirect method that is a synchronous method. दूसरी method है हमारे पास synchronous method. तो क्या कर रहे हैं? by knowing the synchronous impedance we can find the voltage regulation. Okay, so in synchronous impedance method or EMF method is based on concept of replacing the effect of armature reaction by imagining a reactance. Okay, so for calculating this regulations, voltage regulations, some parameter must be required. तो क्या क्या चाहिए? तो एक तो हमें चाहिए आर्मेचर रेजिस्टेंस पर फेज, आर्मेचर का रेजिस्टेंस चाहिए, देन ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक चाहिए एंड शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक. So open circuit characteristic will give us the voltage, circuit voltage and field current, and short circuit characteristic will give us the armature current and field current. Okay, so as name say, open circuit means terminal output side terminal is open, and in short circuit output terminal means armature terminal is shorted. Okay, so first of all we will find the armature resistance. Okay, so resistance test is there, but before going to do that, let's define the standard equation of voltage, terminal voltage V equal to EA, that is generated voltage minus ZS into IA, where ZS क्यों हमें फाइंड आउट करना है? बिकॉज ये इक्वेशन हमारे पास है. ओके, टर्मिनल वोल्टेज हमें मिल जाएगा, तो फाइनली EA क्या होगा? EA होगा V प्लस ZS आइए. ओके, तो हम ZS दैट इज अ सिंक्रोनस इम्पिडेंस, सो ZS इज नथिंग बट अ RA प्लस JXS. ओके, सो RA हमें चाहिए टू फाइंड द सिंक्रोनस इम्पिडेंस. ओके, सो फॉर कैलकुलेटिंग द ZS इज मेजर्ड, देन वी हैव कैलकुलेट द EA. अगर ये मिल जाएगा तो फाइनली वी गॉट दिस EA, तो फिर EA भी मिल जाएगा. Okay, so for that we required the armature resistance. Okay, so to know the value of armature resistance, we have a we have a DC resistance test. Okay, so connection is here to know the resistance of armature. Simple method is there, DC is applied and ammeter is and voltmeter is connected. So by taking the ratio of V by I, we can directly find the value of resistance. Normal methodology is there. Okay, so and as we know the value of resistance, the average of 3 set of resistance value RT is taken and divided by 2. Okay, to obtain the DC resistance. Okay, since the effective AC resistance is larger than the DC resistance, इसमें हम DC resistance जो मिलेगा वो DC अप्लाई कर रहे हैं, but alternator that work on AC we can say, so that AC, so therefore the effective AC resistance per phase is obtained by multiplying the DC resistance by factor 1.20 to 1.75 depending upon the size of machine, and standard value is 1.25. तो जो हमें DC वैल्यू रेजिस्टेंस मिल रहा है आर्मेचर का, तो हमें AC चाहिए, तो उस क्या करेंगे? DC वैल्यू को 1.25 जो वैल्यू मिल रहा है उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वैल्यू मिलेगा दैट इज अवर आर्मेचर रेजिस्टेंस, AC आर्मेचर रेजिस्टेंस. So is AC resistance is higher than DC resistance because of that skew effect or all that. Okay, so अब हमें resistance पता चल गया RA. Okay, then we will do the open circuit test. So ओपन सर्किट टेस्ट में पता है टर्मिनल दैट इज रिमेन ओपन, आर्मेचर के टर्मिनल हमने ओपन कर दिए है और वहाँ हमने वोल्टेज मेजरमेंट के लिए वोल्टमीटर लगा दिया है,
इनपुट हम सप्लाई साइड दे रहे हैं, दैट रोटर साइड मीन्स फील्ड करंट इज given, so ammeter is connected here. So in open circuit test, same as the transformer open circuit है, secondary is open circuit है, तो यहाँ हमें वोल्टेज मिलेंगे दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज, और इनपुट कहाँ दे रहे हैं, इनपुट करंट के फॉर्म में यहाँ दे रहे हैं. तो फील्ड करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज का बीच का जो ग्राफ मिलेगा दैट विल दी ओपन सर्किट टेस्ट. Okay, so here the graph is plotted, so as you change the field current, as you increase the field current, gradually your terminal voltage is obviously increase at some level, and that is go for the saturation form. So is a open circuit test, okay, of the alternator. So यहाँ हमें ये पैरामीटर मिल गया. सेम वे वी हैव अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट. सो इन द शॉर्ट सर्किट टेस्ट टर्मिनल सेकेंडरी मीन्स आर्मेचर टर्मिनल इज शॉर्टेड. ओके, सो वोल्टेज ऑब्वियस जीरो मिलेगा बिकॉज टर्मिनल शॉर्ट कर दिया, तो क्या मिलेगा यहाँ हमें करंट ही मिलेगा. तो इनपुट में भी करंट एंड यहाँ आउट पे भी करंट. सो जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है उसमें जो ग्राफ मिलेगा दैट इज फील्ड करंट वर्सेस आर्मेचर करंट. ओके, सो फील्ड करंट वर्सेस आर्मेचर करंट, एंड एज यू लीनियरली इंक्रीज करोगे तब तक आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा. तो द फील्ड करंट शुड बी फर्स्ट बी जीरो डिक्रीज टू जीरो बिफोर स्टार्टिंग द अल्टरनेटर. द अल्टरनेटर इज रन देन एट अ सिंक्रोनस स्पीड सेम एज इन द ओपन सर्किट टेस्ट. Then the field current is increased gradually in a step and armature current is measured in step. The field current is increased to get the armature current and that is up to 150% of the rated value. Okay, short portion है तो ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, otherwise heavy current will be flow as secondary side means armature side. Okay, so this is the graph of short circuit. So now we have a armature resistance, then we have open circuit test parameter and short circuit test parameter. Okay, so from this three calculations, so we have a so the open circuit characteristic and short circuit characteristic are drawn on the same मुझे सेम कर्व पे ड्रॉ करते हैं, and to determine the value of short circuit current, give the rated alternator voltage per phase. The synchronous impedance ZS वो क्या है, तो ZS इक्वल टू इज द रेशियो ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज टू शॉर्ट सर्किट करंट. सो सिंक्रोनस इम्पीडेंस इज द रेशियो ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज टू द शॉर्ट सर्किट करंट. ओके, फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड द शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट, एंड so from that we have a excess synchronous reactance, so that is under root zx square minus r2 square. Okay, so that equation we have, so from that we can find the value. So now let's draw in the same axis. अगर मैं सेम एक्सिस पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये फील्ड करंट, ये हमारा वो ओपन सर्किट टेस्ट, और ये हो गया शॉर्ट सर्किट टेस्ट. तो ये सेम ग्राफ है. तो हियर V बाई आई ही डिफाइन करना है. तो ओपन सर्किट वोल्टेज, तो ओपन सर्किट वोल्टेज कहाँ है, ये रहा, दैट इज ए बी. तो ओपन सर्किट वोल्टेज इज ए बी एंड शॉर्ट सर्किट करंट, तो शॉर्ट सर्किट करंट दैट इज अ ए सी. शॉर्ट सर्किट करंट दैट इज अ ए सी. सो रेशियो ऑफ ए बी अपॉन ए सी दैट विल बी जेड एस. ओके, उसको दूसरे फॉर्म में ले तो ये रहा. ओके, बाई सॉरी, देख सकते हो ये हमारा ग्राफ, एंड दिस इज अ फेजर डायग्राम फॉर दैट. ये हमने आगे भी डिफाइन किया है. सो ई ज़ीरो मीन्स जनरेटेड वोल्टेज क्या होगा, जनरेटेड वोल्टेज इज नथिंग बट ओ बी प्लस ओ डी मीन्स वेक्टर सम ऑफ ओ बी प्लस बी डी स्क्वेयर, वेक्टर सम ऑफ ओ बी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर. अब ओ बी क्या है, तो ओ बी दो पैरामीटर में है. ओ बी इज एक तो है वी कॉस फाइव प्लस इतना, तो इतना किया है वी कॉस फाइव प्लस ये वाला पोर्शन है आई आर ए. तो ओ बी है वी कॉस फाइव प्लस आई आर ए, एंड सेम वे ये वाला पोर्शन क्या है वी साइन फाइव आई एक्स एस, वी साइन फाइव आई एक्स. दिस थिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड इन वेक्टर फेजर डायग्राम. हमने फेजर डायग्राम में ये डिफाइंड की दिया है. तो हमें मिल गया अब ई ज़ीरो, तो ई ज़ीरो मिल गया. सो फाइनली वी कैन फाइंड द वोल्टेज रेगुलेशन. So we can find the voltage regulation. Okay.
Okay, so now let's say one example, take one example to understand this phenomena कि भाई क्या हो रहा है. So पहले तो हम एक सिंपल एग्जांपल डिफाइन करते हैं कि फाइंड द सिंक्रोनस इम्पीडेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ द अल्टरनेटर. आपको सिंक्रोनस इम्पीडेंस मीन्स यू हैव टू फाइंड द ZS and XS in which given field current produce an armature current. IA is given armature current and short circuit on a short circuit and generate the EMF. Voltage is given, open circuit voltage is given. The armature resistance RA is given 0.1 ohm. To what indicate the voltage must be the alternator be excited if it is deliver a load of 100 ampere at a power factor 0.8 lagging with a terminal voltage of 200 volt. Okay, so terminal voltage is given. Okay, and you have to find the generated voltage. What is the generated voltage equation? So before that you have to first of all the ZS and XS. So ZS क्या है, OC upon SC. तो ओपन सर्किट वोल्टेज कितने हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज इज गिवन दैट इज अ 50 वोल्ट. एंड शॉर्ट सर्किट करंट क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट इज गिवन, ये रहा ऑन अ शॉर्ट सर्किट करंट 200 एम्पियर. तो 50 अपॉन 200 दैट विल गिव योर ZS सिंक्रोनस इम्पीडेंस. ओके, सो फर्स्ट पोर्शन हमें मिल गया जो हमें फाइंड आउट करना था, सिंक्रोनस इम्पीडेंस. सो जैसे ही सिंक्रोनस इम्पीडेंस मिल गया वी कैन फाइंड XS बिकॉज RA इज आर्मेचर रेजिस्टेंस इज गिवन. तो ZS हमने फाइंड आउट किया और RA है तो हमें वो भी मिल गया XS. ओके, सो अब हम फाइंड आउट क्या करना है, हमें जनरेटेड वोल्टेज इक्वेशन फाइंड आउट करना है. उसमें टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, फाई चाहिए, IARA चाहिए, IXS चाहिए. सो IARA क्या होगा, I इज़ गिवन दैट इज़ 100 एम्पियर लोड डिलीवर के लिए तब कौन सा करंट है, और रेजिस्टेंस आर्मेचर तो 0.1 है. तो IARA मिल गया. सेम वे IXS क्या मिलेगा, I 100 है और XS हमने फाइंड आउट किया है दैट इज़ 0.23. सो फाइनली वी गॉट दिस. अब पावर फैक्टर 0.8 लेगिंग दिया हुआ है. सो कॉस फाइव 0.8 लेगिंग, जो साइन फाइव क्या होगा 0.6. तो यही सर्किट हो रही है. आगे हमने ये इस तरह के एग्जांपल सॉल्व किए हुए हैं. सो फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड द जनरेटेड वोल्टेज. अब हमारे पास सारे टर्म्स है, V है, कॉस फाइव है, IARA है, साइन फाइव है, IXS है. ओके, सो पुट द वैल्यू ऑल ऑफ हियर एंड यू कैन फाइंड जनरेटेड वोल्टेज दैट इज 222 वोल्ट. Terminal voltage is 200 volt. Okay, terminal voltage is less than the generated voltage. Okay, because of this things drop. Okay, so now next example is you have to find the voltage regulation. So it's a voltage regulation based. So from sorry So from the following test result, determine the voltage regulation of. So you have to find the voltage regulation of what? Of a 2000 volt single phase alternator delivering a current of 100 ampere at a unity power factor, 0.8 leading power factor and 0.71 lagging power factor. Okay, so for a different load or different power factor you have to find out the voltage regulation. So test result दिया हुआ है तो क्या है, full load current दिया हुआ है that is 100 ampere load current is given produce on a short circuit. Okay, so full load current on short circuit पे दिया हुआ है 100 ampere. Field is excited excitation of 2.5 ampere. field current भी दिया हुआ है. ओके, EMF जो 500 वोल्ट इज प्रोड्यूस ऑन अ ओपन सर्किट बाय द सेम एक्साइटेशन. द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.8. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ZS फाइंड आउट करेंगे. तो ZS ओपन सर्किट वोल्टेज, तो ओपन सर्किट वोल्टेज 500 वोल्ट दिए हुए है, दिस इज वन. ओके, सो 500 वोल्ट. अब शॉर्ट सर्किट करंट तो 100 एम्पियर एट शॉर्ट सर्किट, तो ZS इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 100. सो वी गॉट 5 ohm, that is the synchronous impedance. Okay, now from that we can find XS because RA is given,
आर्मेचर रेजिस्टेंस हमारे पास है, जेड एस आपने फाइंड आउट कर दिया है, तो एक्सेस भी मिल गया। ओके, तो ये मिल गया। ओके, सो अब अगर हम ड्रॉ करें फेज़र डायग्राम्स, सो अब पता है कि क्या होगा, किस तरह आएंगे फेज़र डायग्राम। तो ये यूनिटी के लिए हमने डिफाइंड किया है, ये लेगिंग के लिए डिफाइन किया है, और ये लीडिंग के लिए डिफाइन किया है। टर्मिनल वोल्टेज सबके सेम है 2000 वोल्ट। ओके, एंड IARA अकॉर्डिंगली डिफाइंड किया हुआ है, बिकॉज पावर फैक्टर चेंज होगा तो दो जनरेटेड वोल्टेज भी चेंज होगा। सो नाउ लॉट फॉर द यूनिटी पावर फैक्टर, तो यूनिटी पावर फैक्टर का इक्वेशन हमारे पास है जनरेटेड वोल्टेज का। ओके, उसमें चाहिए मुझे जनरेटेड वोल्टेज प्लस जो ड्रॉप हो रहा है IARA प्लस IXS, ये मुझे चाहिए। तो E0 पुट द वैल्यू ऑफ दैट एंड फाइनली यू कैन फाइंड द जनरेटेड वोल्टेज E। नाउ फॉर दैट वोल्टेज रेगुलेशंस क्या होगा, E0 माइनस V, E0 क्या है 2140 माइनस 2000 अपॉन 2000, सो आई गॉट परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन दैट इज 7%। ओके, नाउ फॉर 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, तो उसमें ये पोर्शन माइनस होगा। ये इक्वेशंस में हमने आगे भी दिखा हुआ है। ओके, नाउ पुट ऑल द वैल्यू इन द इक्वेशंस, सो वी गॉट 1820 एंड फाइनली बिकॉज लीडिंग पावर फैक्टर है, तो वोल्टेज रेगुलेशन इज ऑलवेज माइनस, और माइनस फॉर्म में ही मिलेगा बिकॉज कैपेसिटिव लोड इज देयर, तो वोल्टेज रेगुलेशन इज माइनस बिकॉज दिस इज योर जनरेटेड वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज अपॉन टर्मिनल, तो हमें यहाँ मिलेगा -9%। एंड व्हेन पावर फैक्टर इज लैगिंग, तो E0 इक्वेशंस क्या होगा, ये होगा। सो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, जनरेटेड वोल्टेज जो है माइनस टर्मिनल वोल्टेज अपॉन टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज 21.6%। तो आप देख सकते हो वोल्टेज रेगुलेशंस का वेरिएशन फॉर अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। तो गुड रेगुलेशंस क्या बोलते हैं, जब दैट इज इक्वल टू वी कैन से ज़ीरो फॉर्म में होता है, तो वी कैन से इस तरह हो, अगर नेगेटिव फॉर्म में जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं दैट हैविंग अ वेरी गुड वोल्टेज रेगुलेशन। मीन्स टर्मिनल वोल्टेज में जो जनरेटेड वोल्टेज है उतने ही टर्मिनल वोल्टेज मिल रहे हैं, और लॉस कम हो रहा है, जो ड्रॉप हो रहा है वो कम हो रहा है। ओके, अगर ज़्यादा मिल रहा है तो पुअर वोल्टेज रेगुलेशन हम उसे कह सकते हैं। ओके, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, okay, so I hope you have a clear with this voltage regulation. So here I just ended my session. So before going to end with that, let's revise what we have done. We have gone through the voltage regulation, means standard equation of voltage regulations. तो वोल्टेज रेगुलेशन जो डिफरेंस है कि भाई आर्मेचर में इतना वोल्टेज जनरेट हो रहा है और टर्मिनल पे जो मिल रहा है डिफरेंस, और जब लोड कनेक्ट करते हैं तो जो ड्रॉप हो रहा है तो डिफरेंस है, उसे हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। मैथडोलॉजीज उसे डिफाइंड करने के लिए, सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है इनडायरेक्ट मेथड में, सिंक्रोनस इम्पीडेंस, एम्पियर टर्न मेथड और जीरो पावर फैक्टर मेथड। हमने सिंक्रोनस इम्पीडेंस अभी डिफाइन किया हुआ है। ओके, सो सिंक्रोनस इम्पीडेंस में हमें 3 पैरामीटर बेसिकली चाहिए, आर्मेचर रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन फाइंड दी ZS, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एंड फॉर अ डिफरेंट पावर फैक्टर you can find the different voltage regulation. Okay, so I hope you have a clear with this. So here I just ended my session. Thank you very much.